Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to deal with this topic GS paper 3 syllabus, decoding the syllabus with understanding the micro topics as well as understanding what resources you require in order to cover these micro topics. So in today's class we are going to decode the entire GS paper 3 syllabus. आज की class में we are going to do the trend analysis also and we are going to decode the entire GS paper 3 syllabus, keeping in mind the micro topics and from which resource to prepare those micro topics from, that also I am going to let you know. ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको रिसोर्स भी बताने वाली हूँ, माइक्रो टॉपिक्स कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है लास्ट 2 years का, all of that we are going to take into account today. Okay, and the PDF of this lecture you'll get it on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. The link is given below in the description box. Now before starting the class, here's a small announcement for all of you. आप सभी के लिए एक छोटी सी announcement है. Unacademy has started this free classes special series on strategy for UPSC CSE 2020 and 2021 aspirants. In this series of free lectures, Unacademy's top educators will provide in-depth analysis of answer writing practices and the strategy to optimize the scores by the art of interlinking answers for the optional subjects. The series covers 18 optional subjects where a comprehensive and holistic approach will be undertaken and will be highlighted to revise the subjects in the final leg of the preparation in the race of UPSC CSE mains examination. So you can access all these lectures free of cost according to your personal optional. आपका जो भी optional है उसके basis पे आप अपने optional से related strategy को यहाँ से आप देख सकते हो, strategy video को check out कर सकते हो, and these strategy videos are designed for all of you in order to take away all your doubts, dissolve all your doubts, and to help you link your optional with your other GS papers. So the link to enroll in these free classes, to watch these free classes, is given below in the description box. What you have to do is you have to download the Unacademy's learning app, register yourself for free, and then click on the link given below in the description box to access all these free lectures. Okay, let's start the session now. Now let's start with the GS paper 3 structure. पहले तो structure से शुरू करते हैं, right? Because see, if you don't know the syllabus or the structure of the paper, then it will be very tough for you to prepare accordingly. Without knowing the syllabus, how can we prepare? Without knowing which topic is coming, how can we prepare for an exam? राइट एक एग्जाम की तैयारी करने जाते हो तो सिलेबस तो मैंडेटरी होता है, बिना सिलेबस के क्या पढ़ोगे? ओके, सो दैट इज व्हाई अगेन एंड अगेन एवरीबडी, even the toppers, the rankers, the educators, everybody focuses on understanding and memorizing the syllabus first. Before that, you cannot move ahead because you will be directionless then. Without syllabus, student gets directionless. So to acquire direction, we need to know the syllabus. Direction पाने के लिए syllabus की जरूरत होती है. And then if you don't know how the question paper is set, then also you will never be confident in your preparation. अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होता है तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दी सेटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर की सेटिंग समझ लेते हैं. GS पेपर 3 स्ट्रक्चर, देयर आर टोटल 20 क्वेश्चंस. 20 क्वेश्चंस होंगे इन GS पेपर 3 इन मेंस. नाउ बिफोर दैट देयर आर मेनी न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास. So I'll just let you know the structure of UPSC. मैं आपको UPSC CSE का ना स्ट्रक्चर बता देती हूँ, right? Very quickly. Now this exam is divided into 3 parts. ये exam जो है ना ये 3 parts में divided है. First is the prelims part. पहला हो जाता है आपका prelims stage, that is the entrance level stage, qualifying level stage. Then after clearing prelims, you will enter into the mains stage. Prelims clear करने के बाद आप mains के stage में आओगे. Now prelims is MCQ objective type of paper. Mains is subjective. ये आपका subjective होता है, यहाँ आपको answers लिखने होते हैं. And then comes your interview stage. Now interview is nothing but your personality test. आपका personality test होता है interview. Okay, if you are fit as for the position of an administrator or not, mentally, emotionally, socially, that is tested in the interview session. Okay, तो interview session में कुछ नहीं होता, आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी. आपकी जो personality है वो एक administrator की personality के तौर पे fit है या नहीं वो check किया जाएगा. ठीक है. Now prelims, यहाँ पर इसमें prelims में 2 papers होते हैं. In prelims also there are 2 papers. In one day only those 2 papers are conducted in different phases. एक morning में होता है, एक evening session में होता है. ठीक है. So first is GS and second paper is CSAT, mathematical ability, aptitude, analytical skills, that is tested in CSAT, which is qualifying.
नाउ मेंस में ना अलग अलग पेपर होते हैं. इन मेंस देयर आर 2 क्वालिफाइंग पेपर्स, राइट. सो योर लैंग्वेज एंड इंग्लिश पेपर, ये दो आपके पेपर होते हैं मेंस में, पेपर ए एंड पेपर बी. इफ यू क्वालिफाई दीज 2 पेपर्स देन द रेस्ट ऑफ द पेपर्स विल बी चेक्ड. ये दो पेपर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो बाकी के पेपर्स आपके चेक होंगे. ऐसे पेपर होता है आपका, देयर इज एन ऐसे पेपर. Then there is optional. Optional maybe it is divided into 2 papers, paper A and paper B. One optional divided into 2 papers. Okay. And then 3 घंटे का पेपर होता है ये मेंस में ना. Every paper is of 3 hours each. Okay. And prelims में every paper is of 2 hours each. Then essay हो गया, optional हो गया. Then comes GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, GS paper 4. ठीक है. So these are the papers in mains. Today we are going to decode GS paper 3. Yesterday we decoded GS paper 2. कल हमने किस सिलेबस को पढ़ा था अच्छे से? GS paper 2 के सिलेबस को पढ़ा था. आज हम GS paper 3 के सिलेबस को पढ़ रहे हैं. Tomorrow we are going to decode GS paper 1 and GS paper 4. There will be 2 special classes tomorrow on Unacademy, and we are going to decode GS paper 1 and GS paper 4 in those 2 sessions. Okay. So this is the structure of mains. Then comes your interview. ठीक है. तो अब ये बात समझ आ गई सबको. So over here, GS paper 3 there are 20 questions. There will be 10 marker questions. 10 marks के जो questions होंगे वो 150 नंबर के होते हैं, 150 words के होते हैं, right? In 10 markers questions, there will be of 150 words. That means आपको 150 words में आंसर लिखना होगा. And 15 marker questions, 250 words. That means within 250 words you have to write the answers. ये आपकी word limit होती है. This is set word limit. If the question is of 10 marks, word limit of answer will be 150. If the question is of 15 marks, word limit of the answer will be 250. And questions are printed both in English and Hindi so that all the students can understand the question paper very comfortably. Okay? इतनी बात सबको समझ आ गई. 20 questions हो गए. अब आगे बढ़ते हैं. Now let us move forward. Now what is the detailed structure of mains GS paper 3 question paper? Question paper का structure क्या है? 20 questions that I told you. 10 marker question, word limit is 150. 15 marker question, word limit is 250. Now paper GS paper 3 specifically focuses on the economic development portion. GS paper 3 सबसे ज्यादा focus करता है economics पे, economics development पे, right? Clear? So let us understand the syllabus. Syllabus पढ़ लेते हैं. Before that, here's a small trend analysis for all of you. In 2019 mains, 2019 के mains में the questions in GS paper 3, 50 questions, right? अगर आप 50 marks अगर आप देखोगे, 50 marks they were from economic section. 50 marks जो थे ना, 50 नंबर वो आपके economic section से आए थे. So economy alone was of 50 marks. So you have to make sure that you are focusing on economy in the economic budget and economic survey a lot. जब budget निकलता है ना, जब survey निकलता है, उस पे आपको थोड़ा सा special emphasis डालना है. राइट. टोटल द पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स. टोटल पेपर जो होता है वो 250 नंबर का होता है. ठीक है. बट आपको स्पेशल फोकस इकोनॉमी पे भी रखना है. राइट. इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, स्पेशल फोकस शुड बी ऑन दीज 2 टॉपिक्स. ओके. नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द ब्रॉड सिलेबस, देन वी विल डिवाइड इट इनटू माइक्रो टॉपिक्स. पहले एक ब्रॉड जर्नल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, फिर माइक्रो टॉपिक्स में उसको डिवाइड कर लेंगे. सो जीएस पेपर 3, व्हाट इज द सिलेबस? यू हैव टेक्नोलॉजी, you have economic development, you have biodiversity, with biodiversity, environment and security and disaster management. This is the broad syllabus of GS paper 3. Okay, GS paper 3 का broad syllabus है. आपके पास eco है, that is economic development. आपके पास biodiversity, environment, ecology है. Security, internal security. You have to study the border areas, the technologies which are used to maintain the internal security. And disaster management in science and technology. This is the broad syllabus and this should be memorized. You should have this on your fingertips. आपको याद होना चाहिए कि कोई सोते वक्त भी आपसे पूछे ना कि GS पेपर 3 क्या है, तो आप broadly बता दो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, DM. This is the broad syllabus. Okay. Now we will divide it into micro topics. क्योंकि economic development it is so vast. There is so much to study in economics. But what UPSC is asking you to study, that we are going to understand today. ऐसे तो टेक्नोलॉजी में काफी टेक्नोलॉजीज है, क्या सब पढ़ने बैठ जाओगे? नहीं. यूपीएससी ने मेंशन किया है कि पढ़ना क्या है. यूपीएससी हैज मेंशन्ड व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट यू हैव टू लीव असाइड. ओके. सो लेट्स डिकोड द माइक्रो, द माइक्रो टॉपिक्स.
तो अब इस ब्रॉड सिलेबस में माइक्रो टॉपिक्स में हम डिकोड करने वाले हैं अलोंग विद रिसोर्सेज एंड दी बुक लिस्ट। ठीक है, एवरीबडी इज रेडी? क्लियर। शुरू करते हैं माइक्रो टॉपिक्स को डिकोड करना। फर्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Now, whenever you are preparing, you are starting your preparation for UPSC, make sure that you are studying budget and economic survey of that year. उस साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही पढ़ना है, इसको तो स्किप नहीं कर सकते। इफ यू आर स्किपिंग द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, दैट मीन्स यू आर taking a very big risk, because approximately 50 marks are directly from इकोनॉमिक डेवलपमेंट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। 50 मार्क्स जो है वो डायरेक्टली बजट में से आ जाते हैं। इवन इन प्रीलिम्स, फॉर प्रीलिम्स आल्सो बजट हैज टू बी प्रिपेयर्ड। प्रीलिम्स में भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल 18 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम इको, right? Out of these 18 questions, 10 questions will be directly from the budget and economic survey. अगर 18 क्वेश्चन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आ रहे हैं ना प्रीलिम्स में, तो 10 क्वेश्चन डायरेक्टली बजट से उठा के डालेंगे। दैट इज व्हाई स्टडिंग बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड इफ यू हैव इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल, then you have no option to leave the budget and survey aside. अगर मान लो आपके पास ऑप्शनली इको है, तब तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, सो मेक श्योर दैट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे डेडिकेटेडली, सिंसियरली, लाइक अ पैशनेट स्टूडेंट, यू आर स्टडिंग इट. So the topics in economic development are Indian economy and issues related to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Now over here, planning हम जब बात करते हैं पहले सब टॉपिक की, जो कि है planning, this is the first sub topic, planning. Here you have to study the meaning of planning, the need for planning in economic development, then what is different types of planning, imperative planning, indicative, structural planning, what is the difference between these, then objectives of planning, then the history of planning in India since independence, the 5-year plan, 12-year plan, etc. Techniques of Indian planning, how do we plan our economy, achievements and failures of Indian planning, the drawbacks in the planning, नीति आयोग versus planning commission. ये आपका पहले आपके माइक्रो टॉपिक का पार्ट है. This is the first micro topic, and all of these 9 topics can be covered very easily if you study NCERT of economics class 11 to 12th and Ramesh Singh book on Indian economy. रमेश सिंह की किताब जो है इंडियन इकोनॉमी पर, और एनसीईआरटी क्लास 11-12 की, अगर आप ये दो पढ़ लेते हो, आपका ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है, दिस इंटायर टॉपिक कैन बी कवर्ड इजीली फ्रॉम दीज 2 सोर्सेज. बहुत इजीली इन 2 सोर्सेज से कवर हो जाएगा. ओके, बिकॉज इट इज थ्योरेटिकल इन नेचर. ये कंप्लीट थ्योरेटिकल है नेचर में. इट इज नॉट डायनामिक, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट और वेरी वास्ट. इट इज थ्योरेटिकल इन नेचर, and you can cover it completely from Ramesh Singh Indian Economy book and NCERT of Economy class 11th and 12th. Okay, this much is clear. Now coming on to the next micro topic, mobilization of resources. Here what you have to study under mobilization of resources, जब आप syllabus निकालते हो, whenever you take a print out of the syllabus, you just go through this broad topic and you get confused what to study in mobilization, right? That is why we have to decode the micro topics. In the mobilization of resources, you have to study type of resources, financial resource, human resource, natural resource. What is the need for mobilizing these resources, using them appropriately in different sectors, role of savings and investment, government resource, direct tax, indirect tax, okay, monetary policies, banking sector, capital market, external sources, public borrowing, challenges in mobilizing resources. So all of these are again covered in Ramesh Singh book. ये सारे टॉपिक्स भी ना रमेश सिंह सर की बुक में कवर्ड है. नाउ व्हाई वी आर रिकमेंडिंग रमेश सिंह? देयर आर मेनी बुक्स फॉर इकोनॉमी, बहुत सारी किताबें हैं, बट व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन रमेश सिंह? बिकॉज इट इज मेड और प्लान्ड और रिटन on the lines of the micro topics in the GS paper 3 syllabus. जैसे ये micro topics को मैंने यहाँ पर decode किया हुआ है ना, point wise segregate किया है, वैसे ही segregate करके पढ़ाया है रमेश सिंह सर ने. That is why I am again and again repeating that Ramesh Singh sir's book is one stop solution. ठीक है, तो ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है रमेश सिंह सर की बुक. इसके अंदर माइक्रो टॉपिक्स करके ही पढ़ाया है टॉपिक्स को रमेश सिंह सर ने. दैट इज व्हाई इट बिकम्स इजी फॉर यू टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस. Even if you don't have the syllabus for GS paper 3 na, in Ramesh Singh sir's book the syllabus is given by dividing or segregating the micro topics. इनकी बुक में पहले ही 4 पेजेस में सिलेबस दिया हुआ है माइक्रो टॉपिक्स के साथ. तो अगर आपके पास ये किताब है ना, तो आपको सिलेबस निकालने की भी जरूरत नहीं है.
ठीक है. So all these topics again, two resources, रमेश सिंह sir's book and NCERT class 11th and 12th. इतनी बात सबको समझ आ गई. एक बात याद रखना कि रट्टा मत लगाने बैठना. इफ यू आर स्टडिंग प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन, डू नॉट क्रैम, बिकॉज इफ यू विल क्रैम यू विल नेवर बी एबल टू रिटेन इट टिल योर एग्जाम, ट्रस्ट मी. ठीक है. तो अगर आप इसको रटोगे ना तो एग्जाम तक बिल्कुल याद नहीं रहने वाला, सब भूल जाओगे. बट अगर समझोगे, इफ यू अंडरस्टैंड इट, then trust me, even after clearing this exam you will be able to retain all these things in your memory. एग्जाम क्लियर करने के बाद भी याद रहेगा अगर समझ लोगे. ठीक है. So this was my tip, personal tip for all of you. Now the next micro topic is growth and development. ये है आपका दूसरा micro topic. Now in growth and development you have to study about employment, right? Economic growth, determinants of growth, how to determine if the economy is growing, what are the parameters which are used to measure the growth of the economy. कहते हैं ना, यहाँ से रिपोर्ट आई इकोनॉमिक ग्रोथ इतना हुआ है, वहां से रिपोर्ट आई इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, 6%, 7%, 4%. हाउ दिस परसेंटेज इज कैलकुलेटेड, ये परसेंटेज इकोनॉमिक ग्रोथ का कैलकुलेट कैसे होता है, दैट इज डिस्कस इन दिस माइक्रो टॉपिक. ओके, clear? So the sources to study all these topics are again Ramesh Singh sir's book and the Hindu newspaper or the Indian Express, whichever newspaper you are studying. इन दो में से कोई एक न्यूज़पेपर. ठीक है. So over here रमेश सिंह की बुक मैं आपको कवर कहूंगी करने के लिए, बिकॉज रमेश सिंह सर ने क्या किया है, एक तो ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट लेक्चरर, राइट, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट है, एंड ऑल्सो ही हैज कवर्ड द एंटायर सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 3 इन द बुक इटसेल्फ इन माइक्रो टॉपिक्स. दैट इज व्हाई आई एम रेफरिंग रमेश सिंह. बार बार मैं रमेश सिंह सर की बुक क्यों रेफर कर रही हूँ, क्योंकि रमेश सिंह सर एक्सपर्ट है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, काफी प्लानिंग में एंड पॉलिसी मेकिंग में इनको रेफर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. गवर्नमेंट ऑल्सो रेफर्स रमेश सिंह in formulating policies and other measures in the economy, and he has covered entire GS paper 3 in his book. पूरा even a single non-important micro topic, that also he has covered. For example, over here आप देख सकते हो measurement and indicators of development. ये टॉपिक ज्यादा नहीं पूछा जाता. This topic is not asked a lot. Completely theoretical topic, not even touched by UPSC. But still he has covered even this topic. Just because UPSC कोई टॉपिक टच नहीं कर रहा तो हम सिलेबस के इस पार्ट को इग्नोर करेंगे, नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया. इन्होंने एक एक पॉइंट कवर किया है. सो इफ यू कवर रमेश सिंह थ्राइस, ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 3 इज नॉट टफ टू क्रैक. इकोनॉमिक सेक्शन जो है, अगर आप रमेश सिंह को 3 बार रिवाइज करके जाते हो, ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स में बहुत कॉन्फिडेंटली बैठोगे, जीएस पेपर 3 बहुत कॉन्फिडेंटली बैठोगे. ठीक है. सो ओवर हियर अगेन सी करंट अफेयर्स यू हैव टू प्रिपेयर, because now after 2015 UPSC has changed its stand. UPSC is now more current affairs oriented. Prelims 2020 में आपने देखा ही होगा, भर भर के करंट अफेयर्स आए एग्रीकल्चर से. ठीक है. तो इसीलिए करंट अफेयर्स तो आपको मस्ट है, बट along with current affairs the static portion you can cover it through Ramesh Singh and NCERT class 11 12. Okay. The next micro topic in GS paper 3 is employment. Now here employment again in the syllabus the theoretical concept of employment is discussed. syllabus में ना theory है employment की, what is employment, right, different types of employment, then what is labor force participation rate, employment rate, working age population, the basic topics under employment which you had covered in NCERT in class 11 12, that is asked. NCERT level knowledge आपसे पूछी जाएगी employment के अंदर, प्लस करंट अफेयर्स मीन्स द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन करंट टाइम्स इन इंडिया. भारत में अभी एम्प्लॉयमेंट की स्टेट क्या है, स्थिति क्या है, ये समझ, ये पूछा जाएगा. वो करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया जो आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स में से नॉलेज ले सकते हो. सो इफ यू आर रीडिंग द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्किपिंग पेज नंबर 15 एंड द एडिटोरियल सेक्शंस डेली. ठीक है. कभी भी 2 दिन से ज्यादा का बैकलॉग मत रखना करंट अफेयर्स का, बहुत मुश्किल हो जाएगी. डेली पढ़ने की कोशिश करो. ठीक है. एंड स्पेशली द इकोनॉमिक सेक्शन इन द न्यूज़पेपर. सो हियर एनसीईआरटी क्लास 11 12, रमेश सिंह बुक एंड योर करंट अफेयर्स. ओके. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट. So here in this micro topic they will ask you what is inclusive growth. Inclusive growth means example इसका क्या हो जाएगा, what can be the example, financial inclusion. ठीक है.
Since demonetization, you must be hearing about this term financial inclusion. जब से demonetization हुआ है, आप लोग ये word के बारे में बड़ा सुन रहे होगे, financial inclusion. We are going to include everybody, every strata of the society into banking system. हम बैंकिंग सिस्टम में गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम सबको इंक्लूड करेंगे, राइट. रूरल सोसाइटी से या रूरल एरिया से भी, हर एरिया से हर इंसान को हम बैंकिंग सिस्टम में लेकर आना चाहते हैं. दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ. उसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं. ठीक है. व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ऑल दीज टॉपिक्स are covered in Ramesh Singh, and you can find the current affairs on these topics from the Hindu newspaper or the Yojana magazine. Now for GS paper 3, studying the Yojana magazine is must. ठीक है. मैं इसको इस बात पर बार बार जोर डालूंगी, फोकस करूंगी कि योजना मैगजीन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है GS पेपर 3 के लिए. For GS paper 3, Yojana magazine is a must. It is a must, trust me. Because in every month, one Yojana magazine you will be getting. ठीक है. योजना मैगजीन आपको हर महीने मिलेगी. आप अपने न्यूज़पेपर वाले भैया से बोल सकते हो. You can just ask your newspaper वाले भैया to deliver the योजना magazine, or you can go to the योजना magazine's website and subscribe to it. ठीक है. सब्सक्राइब कर सकते हो. आई गेस 50, 20 या 80 या 10 रुपीज की आती है कभी कभी, राइट. मंथली एडिशन ऑफ मैगजीन. सो दिस योजना मैगजीन इज अ you can say unbiased magazine. इधर कोई biased नहीं होता है किसी के लिए, न्यूट्रल मैगजीन है. whatever is happening in the economy, there are articles on those, you can say events in the magazine, and those articles can be used for your developing your answer writing skills. ओके, इन जीएस पेपर 3. तो योजना मैगजीन में जो आर्टिकल्स आते हैं ना, वो आपको आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेंगे, राइट. ऑल द फैक्ट्स आर मेंशन्ड, अनबायस्ड फैक्ट्स, कोई पार्शियलिटी नहीं है, न्यूट्रलिटी है पूरी तरीके से. ऑल द स्टैट्स आर मेंशन्ड, ऑल द पॉलिसीज आर मेंशन्ड, ऑल द स्कीम्स आर मेंशन्ड, ऑल द योजनाज आर मेंशन्ड, and also on these schemes, policies, yojana, what is the purpose behind launching them, everything is mentioned. So that is why for this section of Indian economy, Yojana magazine and Ramesh Singh's book will be sufficient. ठीक है, इतना काफी होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. Now the next topic is government budgeting. Government budgeting means how does the government prepares budget? What are the different types of budget? What is fiscal deficit? What is surplus? What is the meaning of deficit and what is the meaning of surplus? What are the changes made in the budget? What are the types of budget? How budget is passed? बजट को पास करने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है, कैसे पास होता है, राइट. ऑल दीज पॉइंट्स. एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स दे प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट्स, राइट. डिफरेंट अकाउंट्स. आपके पेरेंट्स जब टैक्स भरते हैं उससे पहले आप बैलेंस शीट तैयार करते हैं, पीएनएल अकाउंट तैयार करते हैं, राइट. तो उस ऐसे ही गवर्नमेंट भी अलग अलग अकाउंट्स तैयार करती है. गवर्नमेंट ऑल्सो लाइकवाइज प्रिपेयर्स डिफरेंट अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट. व्हाट आर दीज अकाउंट्स? एवरीथिंग आर will be covered under government budgeting, and this you can cover if you study the budget of that year. इसलिए आपको इकोनॉमिक बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है. ठीक है. सो इफ यू study these two, the economic budget and survey, that will be sufficient. plus रमेश सिंह ने तो बहुत अच्छे से ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं. रमेश सिंह सर has very clearly covered all these points, all these topics. okay, so this book plus budget and economic survey, I am expecting that you are writing down the sources for each and every micro topic. मैं ये expect कर रही हूँ कि आप हर एक माइक्रो टॉपिक के लिए सोर्स लिखते जा रहे हो जो मैं बता रही हूँ. ठीक है, because that is going to be helpful for all of you. clear? Don't just listen. Make notes also in the class. For this micro topic, the source is Ramesh Singh sir's book plus budget and economic survey. Okay? इस micro topic के लिए ये दो sources हैं जो आपको पढ़ने हैं. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. Land reforms in India. Now, in yesterday's class, I launched the class on important government schemes, wherein we studied the Swamitva Yojana. राइट. तो हमने स्वामित्व योजना के बारे में पढ़ा था. स्वामित्व योजना वॉज रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, राइट, जिसके अंदर प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा. सो लैंड रिफॉर्म्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रेजेंट इन हिस्ट्री ऑल्सो. लैंड रिफॉर्म, अगर आपने स्कूल की पढ़ाई याद आ रही होगी थोड़ी, तो आपको याद होगा कि लैंड रिफॉर्म में हिस्ट्री हमने पढ़ा था. जमींदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, दिस इज सम इन क्लास 7th और 6th दैट वी हैव स्टडीड, राइट.
So similarly, government focuses on land reforms. So what is the reason for land reforms? What are the parameters on which land reforms are done? What is the impact of reforming lands, right? Or the policies related to lands? And what are the yojanas, schemes which are launched by government for land reforms? Everything will be covered through, कैसे cover कर सकते हो? Through economic survey. उस ईयर का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है जिस ईयर की तैयारी आप कर रहे हो. फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021, देन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021 एंड 2020 यू हैव टू प्रिपेयर. ठीक है, तो इसमें लैंड रिफॉर्म के ऊपर अलग से वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं. गवर्नमेंट प्रिपेयर्स अ सेपरेट रिपोर्ट ऑन दीज टॉपिक्स, राइट, लाइक लैंड रिफॉर्म्स. प्लस रमेश सिंह, ठीक है, एंड प्लस एनसीईआरटी ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11th. The first 5 chapters are very important. पहले 5 chapters बहुत important है land reforms के लिए. I hope you have note down this resource. आपने ये सोर्स लिख लिया है इस माइक्रो टॉपिक के लिए. पहले 5 चैप्टर इकोनॉमिक एनसीईआरटी क्लास 11th के, रमेश सिंह एंड इकोनॉमिक सर्वे 2021-2020. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट माइक्रो टॉपिक. अब नेक्स्ट माइक्रो टॉपिक पे आते हैं, राइट. Now over here the effects of liberalization on the economy. Okay, so over here the next micro topic is effects of liberalization on the economy. Now in which year liberalization took place? This LPG reforms कौन से year में आए थे? So liberalization, the LPG reforms came in 1991. Clear? So 1991 के LPG reforms when they were passed, there were a drastic changes that were made. License Raj was removed. License Raj हटा दिया था ना, ठीक है. बहुत फ्री हो गई थी, फ्लेक्सिबल हो गई थी इकोनॉमी was made very flexible, right? And the number of permissions and restrictions they also came down. Restrictions जितने भी थे ट्रेड करने में, इन्वेस्ट करने में, उनको भी कम किया गया. इकोनॉमी was opened up. फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमी को ओपन अप किया गया, ठीक है. This was the basic. So that liberalization or the LPG reforms, they changed the economy a lot. बहुत बड़े स्तर पे इकोनॉमी को चेंज कर दिया उन रिफॉर्म्स ने. So we have to study the phase of liberalization at that time. What was the structure of the economy and impact of this liberalization on different sectors, manufacturing sector, service sector, agriculture sector, हर sector पे, industrial sector, what were the impacts? असर क्या पड़ा था ये changes का, ये पढ़ना होगा. एंड ये पूरा डिटेल में रमेश सिंह सर के बुक में कवर्ड है एंड एनसीईआरटी क्लास 11th में कवर्ड है. एनसीईआरटी क्लास 11 प्लस रमेश सिंह, दैट इज इनफ. इसमें करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं. नो नीड टू स्टडी द रीसेंट करंट अफेयर्स इन दिस माइक्रो टॉपिक बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, राइट. सो इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. सो दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम रमेश सिंह, एनसीईआरटी क्लास 11th, फर्स्ट आई गेस 6 or 7 चैप्टर्स. ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई. Coming on to the next important micro topic, that is changes in industrial policy and their effects on industrial growth. Okay, so changes in industrial policy means before 1991 what was the industrial policy, after 1991 what was the structure of the industrial policy, then what are the drawbacks in the industrial policy. भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ तो कमियां होंगी, राइट, इसलिए चेंज की गई थी 1991 के बाद. क्या कमियां थी? What is national manufacturing policy? This is a part of your current affair. CA. SEZ special economic zones. Then make in India. ये तो अभी का पार्ट हो गया ना current affairs का, right? करंट अफेयर्स का पार्ट है ये मेक इन इंडिया. देन डिफरेंट फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कैसे कैसे इंडस्ट्री ने ग्रोथ किया है. व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस और सेगमेंट्स इन विच इंडस्ट्री हैज grown up, and what is the link between economic reforms and economic outcomes. Reforms means the changes which were made in economy. Outcomes means because of those changes what was the result. Reform का मतलब जो हमने changes किए हैं, और outcome का मतलब उस change से क्या result निकल कर आया, right? That you have to study, and ये completely आप पढ़ सकते हो रमेश सिंह सर की बुक से, right? Complete topic you can cover, and these 3 topics you can cover from the Hindu newspaper or the Indian Express newspaper. Daily reading आपको देनी है, and थोड़ा सा Google search करना है यहाँ पर, a little bit of Google search on Make in India policy and National Manufacturing Policy. ये 2 topics आपको Google search करने हैं, इनके ऊपर information acquire करनी है, and rest of the current affairs from the newspaper and the static topics from the Ramesh Singh book, जो topics आपके theoretical है, ठीक है. Now coming on to infrastructure. Infrastructure में make sure that this topic ना it's a part of GS paper 1 also. For example ports, right?
How many major ports are there in India? What is the location of the major ports in India? How many major airports are there in India? Location, right? Then railway lines. First कब establish हुई थी railway line? When it was established for the first time in India, right? The major railway lines in India. Then energy sectors, आपको energy industries के बारे में पढ़ना है, तो इसकी location आपको GS पेपर 1 के लिए भी तैयार करनी है, जिसमें geography आता है. ठीक है, क्लियर? इतनी बात सबको समझ आ गई. एंड व्हाट इज द सोर्स टू प्रिपेयर ऑल दीज? इन सबको प्रिपेयर करने का सोर्स क्या है? द सोर्स इज वन, दैट इज फर्स्ट तो आपको गूगल सर्च करना है, राइट? फर्स्ट इज गूगल सर्च प्लस रमेश सिंह, दैट इज द ओनली सोर्स. ठीक है, गूगल सर्च फॉर द लोकेशन एंड द मेजर पोर्ट्स. मेजर पोर्ट्स कहाँ कहाँ है, लोकेशन क्या है, एंड थोड़ी सी उनकी इंफॉर्मेशन रमेश सिंह सर की बुक में दी हुई है, वो आपको थ्योरी पढ़नी है. एंड दिस इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट फॉर, नॉट फॉर जीएस पेपर 3 मेंस के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट प्रीलिम्स 100% रेलेवेंट. प्रीलिम्स के लिए 100% रेलेवेंट है, बिकॉज एवरी ईयर 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर. हर साल 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से. ठीक है, समझ आ गई सबको बात? नाउ द नेक्स्ट वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. अब ये फेवरेट है तो इसको ना प्लीज मार्क कर लो. इस टॉपिक में से हर साल क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर इन मेंस. हर साल मेंस में 2 क्वेश्चन, राइट, आते ही आते हैं. एंड एवरी ईयर इन प्रीलिम्स एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस. 4 to 5 क्वेश्चन मींस प्रीलिम्स में 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब है 8 to 10 मार्क्स. तो अगर आपने ये टॉपिक जैसे मैं बता रही हूँ वैसे तैयार कर लिया तो 8 से 10 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल, दिस इज द माइक्रो टॉपिक. You must have read the newspaper, and in the newspaper you must have studied different type of words like foreign direct investment, FII, public investment model, cluster based investment, public private partnership, right? ये आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमेशा डिस्कस होता है. FDI आ गई इंडिया में, राइट? ये आपने पढ़ा होगा. तो वर्ड्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दीज वर्ड्स? Public investment model, public private participation model, these are the types of investments which are done in India. अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एंड द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग. गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन में लगी हुई है और प्राइवेट सेक्टर भी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट की, वो हो जाता है पब्लिक प्राइवेट. ठीक है, क्लियर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्हेन द फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल व्हेन द पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल व्हेन द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट, public private partnership when both government and private sector merge and they try to invest and try to construct or develop the infrastructure, that is public private partnership, PPP. ठीक है, तो ये आप कहाँ से पढ़ने को मिलेगा? ये आपको सबसे पहले तो आपको रमेश सिंह सर की किताब से ये पढ़ना है. ठीक है, इवन इफ यू हैव संजीव वर्मा सर्स बुक, जस्ट मेक श्योर इन द इंडेक्स ऑफ द बुक चेक इफ ऑल द माइक्रो टॉपिक्स आर कवर्ड और नॉट. अगर आपके पास संजीव वर्मा सर की भी बुक है ना तो कोई खराब बात नहीं है. इंडेक्स में देखना सारे माइक्रो टॉपिक्स ये जो मैंने मेंशन किए हैं कवर है या नहीं. ठीक है, ओनली देन यू कैन पिक अप दैट बुक. वैसे तो मेंशन होते हैं. ठीक है, रमेश सिंह सर की बुक में ईच एंड एवरी माइक्रो टॉपिक इज एक्सप्लेन, दैट इज व्हाई आई एम रेफरिंग दिस बुक अगेन एंड अगेन. नाउ लेटेस्ट एडिशन पढ़नी है, पुरानी एडिशन मत पढ़ना, बिकॉज हिज बुक इज also linked with current affairs. इनकी किताब में current affairs भी updated होते हैं. So if you are studying the latest edition, that will be wonderful for you. Okay? So now Ramesh Singh, you have to study anyhow. Ramesh Singh तो पढ़नी ही पढ़नी है. Plus daily the Hindu or the Indian Express newspaper reading. There are many students who refer to the economics times also because they are preparing for eco optional. तो अगर आपके पास इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है ना तो आप इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. बट इफ यू डू नॉट हैव इकोनॉमिक्स ऑप्शनल देन नो नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर. ठीक है, ईदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो ये सोर्स हो गया आपका इन्वेस्टमेंट मॉडल का. जब भी एफडीआई के ऊपर इन्फॉर्मेशन आए मार्क कर लो न्यूज़पेपर में और लिख लो. जब भी पीपीपी के ऊपर इन्फॉर्मेशन आए मार्क कर लो और लिख लो. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई तो प्लीज बताएं. This much is clear. This year UPSC's favorite topic was agriculture and prelims, right? अगर आपने previous year question paper या इस साल का question paper उठाया है तो आपने compare करके देखा होगा कि prelims में इस साल agriculture को पकड़ ही लिया UPSC ने.
right? If you have like a sincere student, if you are preparing for UPSC, you must have gone through the question paper of this year prelims, right? अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हो ना यूपीएससी की, तो आपने इस साल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर 110% देखा होगा, एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट मेजॉरिटी क्वेश्चंस वर फ्रॉम एग्रीकल्चर, मेजॉरिटी क्वेश्चंस, right? So that means the students who have cleared prelims, they must be preparing agriculture also for mains GS paper 3. जिन बच्चों ने क्लियर कर लिया ना प्रीलिम्स, वो जरूर एग्रीकल्चर को तो छोड़ के जाएंगे नहीं, किसी भी हालत में पढ़ के ही जाएंगे इसको, क्योंकि एग्रीकल्चर पकड़ लिया है यूपीएससी ने, right? So and this was like a shock because since the last 10 years they were not focusing on agriculture. पिछले 10 साल से एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं हो रहा था, and this year out of all of a sudden they have picked up agriculture, and majority, I mean 60% questions were from agriculture, around agriculture only, right? 60% क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के आसपास ही घूम रहे थे. 10 साल में पहली बार हुआ है, तो द पैटर्न चेंजेस लाइक दैट, ऐसे चेंज हो जाता है पैटर्न, पता नहीं चलता. सो एग्रीकल्चर हियर, दैट मीन्स यूपीएससी इज ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज दैट डू नॉट टेक एनी माइक्रो टॉपिक लाइटली. यूपीएससी के सिलेबस में यूपीएससी इस बार ये आपको हिंट दे रहा है कि कोई टॉपिक छोड़ के मत जाना जस्ट बिकॉज हमने क्वेश्चन नहीं पूछा पिछले 5 साल में, ठीक है? आपको तो सब पढ़ना पड़ेगा, right? There are many students who use the college going strategy, right? They leave aside those topics from which UPSC has not asked a single question in the last 3-4 years, right? So UPSC directly gave a hint to all those students that we are not going to skip any topic. हम कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे, तो इसीलिए सब कुछ पढ़ना है जो सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है? Agriculture, major crops, cropping patterns in various parts of country. Now here agriculture में जो crop और cropping pattern है ना, ये आपको कहाँ से पढ़ने को मिलेगा? Geography NCERT, specifically class 9 to 10th NCERT. Geography की new NCERT. New NCERT is why in the geography not history. History में new NCERT मत पढ़ना. In history do not study the new NCERT because the old ones are best. उसी में से questions आते हैं. New में ना बहुत चीजें information cut कर दी हैं. But in geography, new NCERT because it is updated with the current affairs. ठीक है? So new NCERT geography class 9 to class 10th and 11th 12th. 9 से 12th की तो पढ़नी ही पढ़नी है. You cannot skip it. From 9 to 12th you have to study it. Okay? That will help you to cover the cropping pattern. ये आपको help करेगा climate cropping pattern cover करने में. ठीक है? Next topic is different types of irrigation and irrigation system storage. Now last question on irrigation was asked in prelims 2016. Last time drip irrigation के ऊपर question आया था 2016 में prelims में. The question was on drip irrigation. Okay, and this question came in prelims 2016. Since then no major question has been asked. So you have to prepare irrigation. भूलना मत इसको गलती से भी. 4 साल पहले पूछा था, हो सकता है अब 2021 में फिर आ जाए. ठीक है? सो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर क्लास 9 to 12th ज्योग्राफी एनसीईआरटी. इरिगेशन टॉपिक उससे कवर हो जाएगा बहुत आराम से, प्लस रमेश सिंह एंड न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स रीडिंग, दैट इज इनफ. बट एनसीईआरटी ज्योग्राफी की न्यू एनसीईआरटी यू हैव टू स्टडी. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स, राइट? सो द मंडीज, the regulated markets, warehousing, contract farming, farming के ऊपर vertical farming question आया था prelims 2020 में. In prelims 2020 there were so many questions on farming, I guess 4 to 5 question. That means 8 to 10 marks. 8 से 10 नंबर डायरेक्टली फार्मिंग से आया था. अगर ये देखो, अगर आपने फार्मिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और 8 से 10 नंबर आपके हो गए, राइट? 8 to 10 marks are a lot. They can help. Even one single mark is enough to take you away from your dream of UPSC, and even one single mark is enough to make it through UPSC. एक एक नंबर से बहुत फर्क पड़ता है. एक नंबर से बच्चा रह जाता है, एक नंबर से पास कर जाता है. ठीक है? सो हियर फार्मिंग के ऊपर 8 से 10 नंबर आ गए प्रीलिम्स में इस साल. दिस मीन्स दैट UPSC हैज इंक्रीज्ड द वेटेज ऑफ दिस माइक्रो टॉपिक. UPSC ने इस माइक्रो टॉपिक का वेटेज बढ़ा दिया है, राइट? सो फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो. PIB, Press Information Bureau, पढ़ना है daily. If you cannot study PIB daily yourself, or time constraints are there, or you do not know how to study, then I am taking PIB analysis classes on my YouTube channel, Arpita Sharma classes. You can watch those analysis daily.
अगर आप डेली खुद से नहीं पढ़ सकते तो अर्पिता शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैं पीआईबी एनालिसिस डेली कर रही हूँ, आप वहां से पढ़ सकते हो, बट पीआईबी मिस मत करना. इवन इफ आई एम नॉट अपलोडिंग द वीडियो, यू हैव टू स्टडी इट. ठीक है, क्लियर. पीआईबी एनालिसिस, व्हाई एम आई अगेन एंड अगेन सेइंग पीआईबी पढ़ना है आपको, बिकॉज दिस ईयर ना अप्रोक्सीमेटली आई गेस 20 to 25 मार्क्स वर डायरेक्टली फ्रॉम पीआईबी. 20 से 25 नंबर डायरेक्ट थे, घुमा फिरा के भी नहीं पूछा. They did not, twist the question. Direct, word by word, as it is, statements were taken from PIB. That is why I am saying you have to study PIB. ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ PIB पढ़ना है, क्योंकि घुमाया फिराया भी नहीं, उन्होंने as it is statement उठा के डाल दी. ठीक है, 20 से 25 नंबर बहुत होते हैं. ठीक है, so PIB is mandatory. Current affairs reading mandatory because all these topics you will find in current affairs. And रमेश सिंह बुक के अंदर ना वर्टिकल फार्मिंग और ये सब समझाया हुआ है. जिस बच्चे ने रमेश सिंह को 3 बार रिवाइज करके गया था ना, उसका पक्का क्लियर हुआ होगा. ठीक है, so over here Ramesh Singh book, if the student has revised it thrice, all these contact farming, mandis, warehousing, everything is covered in Ramesh Singh. So the student who has revised thrice this book, he must have cleared the economics section in prelims very easily. And also there was a topper in 2018, Nandini Maharaj ma'am. 2018 की टॉपर थी. शी वॉज एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी एंड टॉपर ऑफ यूपीएससी सीएसई, राइट. ऑल इंडिया रैंक 42 और 40 या उनकी कोई रैंक थी, राइट. शी टॉप्ड इन 2018 एंड शी सेड दैट शी रिवाइज्ड एम लक्ष्मीकांत थ्राइस एंड रमेश सिंह थ्राइस. उन्होंने रमेश सिंह की किताब को 3 बार रिवाइज किया था. एंड शी सेड प्रीलिम्स वाज अ केक वॉक फॉर हर बिकॉज शी रिवाइज्ड द बुक्स थ्राइस. ये जो मेजर स्टैटिक बुक्स है ना, मेन बुक्स है, वो इन्हें 3 बार रिवाइज करके गई थी. इवन द स्पेक्ट्रम. That is why prelims was easy for her. इसलिए उनके लिए prelims बहुत easy था. ठीक है, so make sure you are revising Ramesh Singh thrice. The next important micro topic is e-technology in the aid of farmers. Science and technology से related है, ये current affairs का part है. For example, the e-governance portal, ये जो portal platforms launch करते हैं ना, apps software launch करते हैं government, ये PIB में और आपके हिंदू newspaper में, Indian Express में आता ही रहता है. This is always in the news. So make sure that from your attempt, last 2 years current affairs you are studying. Now let's move forward. आगे बढ़ते हैं. Now the next topic is issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices. Again, MSPs, right? WTO, World Trade Organization. Then what are the problems related to subsidies? What is the rationale behind giving subsidies to the farmers? टाइप्स ऑफ सब्सिडीज, फार्मर्स को सब्सिडीज क्यों दी जाती है, किस किस तरीके की सब्सिडीज दी जाती हैं, प्रॉब्लम्स क्या है सब्सिडीज देने में, एडवांटेजेस क्या है, अच्छाई क्या है, ये सारे टॉपिक्स अगेन रमेश सिंह से कवर होंगे. एंड न्यूज़पेपर रीडिंग. ठीक है, जो भी अपडेट्स होते हैं न्यूज़पेपर रीड करना है आपको और रमेश सिंह सर की किताब पढ़नी है. दैट इज इनफ फॉर दिस सेक्शन. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पीडीएस के बारे में तो सबने सुना होगा छोटेपन से, right? We all have studied and we know about the PDS through our mates also, through our friends also, neighbors also. PDS system के बारे में सबको पता है. राशन शॉप्स, right? राशन कार्ड. So now you must have heard about the आधार issue and the राशन कार्ड्स, कि आप आधार दिखाकर अपना आधार कार्ड दिखा के राशन ले सकते हो या नहीं. All these things are in news, all these topics are in news and that you can study through. कैसे पढ़ सकते हो आप? न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो एंड रमेश सिंह सर की किताब से पढ़ सकते हो. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर स्टडिंग दीज टॉपिक्स ना, डोंट फॉरगेट टू एनालाइज द लास्ट 4 years prelims question paper. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम दैट टुडे यू हैव स्टडीड दिस माइक्रो टॉपिक पीडीएस सिस्टम. मान लो, अज्यूम करते हैं आज आपने पीडीएस सिस्टम पढ़ लिया, राइट? पढ़ने के बाद करना क्या है? यू डोंट हैव टू कीप इट असाइड कि नोट्स बना दिए हो गया बल्ले बल्ले. नहीं. आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम रमेश सिंह and after making notes and revising and memorizing, pick up the last 4 years mains question paper. पिछले 4 साल के यूपीएससी के वेबसाइट पे, गूगल पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ. Just download the question paper or take a print out, right? And go through the question papers and mark those questions which are related to this micro topic. आपने जो टॉपिक कवर किया है ना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं मार्क करो, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि किसी ईयर में क्वेश्चन आया ना हो. ठीक है, मार्क करो एंड ट्राई टू देन सॉल्व इट योरसेल्फ. फिर खुद सॉल्व करने की उसको कोशिश करो. दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. यू डोंट जस्ट मेमोराइज एंड क्रैम एंड कीप थिंग्स असाइड और मेक नोट्स एंड हो गया. नहीं,
You solve the questions related to the topic that you have studied. That is how you measure your performance. That is how you know that you have studied something today. आज मान लो पढ़ लिया मैंने PDS, right? 4 दिन बाद भूल जाएंगे, right? But याद कैसे रहेगा? जब आप उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद रहेगा, फिर नहीं भूलोगे, फिर 2 महीने बाद भी कोई पूछ ले तो बता दोगे. ठीक है? So whenever you study a topic, make sure that you have your syllabus with you and make sure you have last 4 years question paper, both prelims and mains with you. 10 साल के question paper मत पढ़ने बैठना. I request you, please do not study the question paper of 1990, 2001, 2002. No, pattern has changed. Right? The understanding has changed. The syllabus has changed a little bit. So 2015 से पहले के question paper उठाने की जरूरत नहीं है. 2015 से क्वेश्चन पेपर उठाओ और उनको सॉल्व करो. बिकॉज आफ्टर 2015 द पैटर्न वाज कंप्लीटली चेंज्ड. डू नॉट पिक अप एनीथिंग बियॉन्ड 2015. 2015 से पहले की कोई चीज उठाओगे वो टाइम वेस्ट होगा, मत करना. ठीक है? नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट माइक्रो टॉपिक, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी. अगेन यहाँ पर आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है. ठीक है? हियर यू हैव टू स्टडी इकोनॉमिक सर्वे एंड हियर यू हैव टू स्टडी your Ramesh Singh book, economic survey and Ramesh Singh book. That is enough. Now the next important your micro topic is food processing and related industries, right? How the food processing industries work, what are the different programs and schemes related to food processing, right? Sampada scheme, supply chain management, ये सब क्या है? ये आपका रमेश सिंह में कवर्ड है, प्लस आपका ये बजट में कवर्ड है. तो उस साल का बजट पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल today you are studying the food processing, right, and related industries, so study the budget of 2020. रमेश सिंह से तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, 2020 का बजट भी पढ़ना. there are many things regarding supply chain management which are mentioned in the budget. ठीक है? एंड ना देखो, बजट अगर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट दी है वो नहीं पढ़ी जाती तो नो इश्यूज. आप क्या कर सकते हो, कितने ही वेबसाइट ने समरीज निकाली हैं, अपने इंटरप्रिटेशंस निकाले हैं, वो पढ़ सकते हो. इफ यू कैन नॉट डायरेक्टली स्टडी द बजट, दैट इज गुड, दैट इज नो इशू. Don't panic that I cannot study the budget prepared by government as it is. No issues, completely fine, right? हम सब टेक्निकल नहीं होते हैं ना, तो एकदम सब नहीं समझ सकते. What you can do is you can go to any reputed website of any institution like Insights, like Jatin Verma's Sir's IAS organization, right? Or Vision IAS or Clear IAS or IAS Baba. There are so many reputed online websites. KSG. पिक एनी वन. 10 वेबसाइट के बजट मत पढ़ने बैठ जाना, टाइम वेस्ट होगा. पिक एनी वन वेबसाइट एंड यू कैन डाउनलोड द बजट इंटरप्रिटेशन और बजट समरी फ्रॉम दैट वेबसाइट एंड स्टडी इट. क्योंकि कोचिंग सेंटर्स हमारे लिए ना चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरी भी आप पढ़ सकते हो. दैट इज कंप्लीटली फाइन. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट माइक्रो टॉपिक, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये आपका लास्ट माइक्रो टॉपिक. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रीलिम्स में बहुत फोकस किया जाता है, ये याद रखना. कम से कम 16 नंबर यहीं से आते हैं प्रीलिम्स में. और ये कैसे प्रिपेयर होता है? ये बेसिकली प्रिपेयर होता है करंट अफेयर्स से. बहुत बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटीज पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, केमिस्ट्री की पढ़ेंगे, बायो की पढ़ेंगे. नो, देयर इज नो नीड टू स्टडी एनसीईआरटीज ऑफ केमिस्ट्री एंड बायो, राइट? इट इज नॉट मैंडेटरी. इफ यू आर थरो विद द करंट अफेयर्स, then NCERT, you can skip the NCERTs of 11th, 12th, bio and chemistry. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर करंट अफेयर्स आपने प्रिपेयर किए हैं डेडिकेटेडली, डिसिप्लिन मैनर में, तो आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो. सो फॉर दिस पोर्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, सोप्स, देन वाटर सॉफ्टनर, वाटर प्योरिफिकेशन, आरओ के ऊपर बात हो रही थी. दिल्ली में आरओ को बैन कर रहे थे, राइट, इन 2019. दिस वाज द न्यूज. If you are a very dedicated UPSC aspirant, you must have studied this news about RO, right? They were banning it in Delhi. Why? The reasons. So that you can prepare through current affairs. इसीलिए कहती हूँ रोज न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है. ठीक है? So the medicines, coronavirus which is going on, the techniques to prepare the vaccine, right? And what is coronavirus? What is this virus? What is how it it spreads? कैसे ये spread करता है, या फिर कैसे ये spread करता है, कैसे ये बनता है, कैसे एंटर करता है, कैसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द करंट अफेयर्स. ठीक है? तो हर चीज करंट अफेयर्स से कवर होती है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मैंडेटरी हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि इस साल ही आए हैं, राइट? ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई हैव टोल्ड यू द रिसोर्स. गूगल सर्च करनी है आपको, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड इकोनॉमिक सर्वे. नाउ यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी.
right? For example, the achievements, the works done by Homi Jahangir Baba, APJ Abdul Kalam sir, then Tessie Thomas, Har Gobind Khorana, Vikram Sarabhai. These are the different personalities, very prominent personalities. तो आप इनको कैसे प्रिपेयर करोगे? गूगल सर्च से प्रिपेयर कर सकते हो. Here your Google search and newspaper reading will come handy. यहाँ पर गूगल सर्च और न्यूज़पेपर आपकी मदद करेगा. ठीक है, समझ आ गई इतनी बात सबको? प्लीज लेट मी नो इफ दिस मच इज क्लियर. एक एक पेज के नोट्स बनाने आपको इन सब पर्सनालिटीज के ऊपर. जस्ट प्रिपेयर 1 पेज और 1.5 पेज नोट ऑन ऑल दीज पर्सनालिटीज रिगार्डिंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी. भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उसी के ऊपर नोट्स बनाने हैं 1.5 पेज का. यूज गूगल सर्च एंड न्यूज़पेपर, दैट्स इनफ. ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेक्शन इज बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट. ये आपका नेक्स्ट सेक्शन हो गया. नाउ इस सेक्शन के लिए देयर इज वन बुक दैट आई विल रिकमेंड एंड दैट इज शंकर IAS बुक. For this section, Shankar IAS book, GS paper 3 में we have covered economic development, we have covered agriculture, farming, we have covered science and technology. Now the topic is biodiversity and environment. For this, you need to study Shankar IAS book. This is must. ये आपकी मैंडेटरी है, पढ़नी ही पढ़नी है along with current affairs and previous year question paper. And you can also refer to Ministry of Environment, Forest and Climate Change official website. आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ऑफिशियल वेबसाइट को भी डेली रेफर कर सकते हो. कोई भी नए नए अपडेट्स या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, मेक अ नोट ऑफ इट. शंकर IAS बुक पढ़नी ही पढ़नी है, मैंडेटरी है. इट इज अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. यू हैव टू स्टडी, रिवाइज इट एटलीस्ट ट्वाइस. 2 बार तो रिवाइज करनी ही करनी है. ठीक है, एंड डू नॉट स्टडी एवरीथिंग इन द बुक. ओनली दोज टॉपिक्स विच आर मेंशन्ड इन द GS पेपर 3 सिलेबस. ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया है ना, यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं. ओनली दीज चैप्टर्स, ये इसके अंदर जो मेंशन्ड है. PDF विल बी अपलोडेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज. टेलीग्राम ऐप पे जाकर सर्च बार में लिखोगे ना सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज, यू विल गेट टू द चैनल. लिंक इज ऑल्सो पिन्ड अप. ओके, PDF you will get of the syllabus, and Shankar IAS book में only these topics which are mentioned in the syllabus, only those chapters you have to study, not entire book. पूरी किताब नहीं पढ़नी, यही chapters पढ़ने हैं जो mentioned है. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई? Now coming on to the last topic in GS paper 3, that is security, internal security. You must have heard about Naxalites. आपने Naxalites के बारे में सुना होगा, right? You must have heard about North East insurgency. You must have heard about UAPA bill, जो उत्तर प्रदेश का UAPA bill है वो पढ़ा होगा, आपने सुना होगा. पोटा के बारे में सुना होगा, टाडा के बारे में सुना होगा, NIA के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राइट? देन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टेररिज्म इन बॉर्डर एरियाज. ओके, GN के सेपरेटिज्म के बारे में आपने सुना होगा, द सेपरेटिस्ट मूवमेंट, राइट? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, राइट? एक्टर्स के बारे में आपने सुना होगा, एक्टर वर्ड पढ़ा होगा, स्टेट एक्टर्स एटसेट्रा. तो ये सारे टॉपिक्स ना सिक्योरिटी में आते हैं, एंड ऑल दीज टॉपिक्स कैन बी कवर्ड ओनली फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स. जो मैंने आपको टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए ना, इसको थोड़ा सा गूगल सर्च करना है आपको, अ लिटिल बिट ऑफ गूगल सर्च, राइट? ऑन ईच ऑफ दीज टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स, अ लिटिल बिट ऑफ गूगल सर्च एंड डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, दैट इज इनफ. उतना काफी है इन टॉपिक्स के लिए. ये जो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन किए, ये पढ़ना है, गूगल सर्च करना है एंड न्यूज़पेपर रीड करना है, दैट इज इनफ. उतना काफी है. इसके लिए सेपरेट किताब नहीं लेनी. देयर इज नो नीड टू परचेज अ सेपरेट बुक फॉर दीज टॉपिक्स. देयर इज नो सेपरेट बुक. बुक्स तो बहुत है मार्केट में, आपको नहीं पढ़नी. ठीक है, गूगल सर्च करना है इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर और करंट अफेयर्स, दैट इज इनफ. प्लस सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. इन टॉपिक्स के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपनी रिसर्च करने के बाद सॉल्व करना है. ठीक है, मेक श्योर इन ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन नोट्स दैट यू विल प्रिपेयर, दे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 पेज. 1 पेज से ज्यादा के नोट्स नहीं होने चाहिए, 1.5 पेज, मैक्सिमम 1.5 पेज. ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई तो मुझे प्लीज बताएं. ओके, so now these are the focus areas in GS paper 3 according to the analysis of last 4 years question paper. लास्ट 4 साल के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ये एनालिसिस है. फोकस एरियाज इन GS पेपर 3 इज इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे आर फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इस साल भी 2 क्वेश्चन आए थे इन प्रीलिम्स 2020. 2 क्वेश्चंस केम फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Focus on these topics: dark matter, Higgs boson, rare earth elements, GM crops, gene editing. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था. ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी,
बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करना है, एंड यू हैव टू फोकस ऑन सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग। FATF न्यूज में है आजकल, राइट नाउ FATF इज इन न्यूज। पाकिस्तान इज इन विच लिस्ट, जल्दी से बताओ, पाकिस्तान को FATF ने कौन से लिस्ट में डाला है, जल्दी बताओ। ग्रे लिस्ट, वेरी गुड। सो ग्रे लिस्ट में डाला है, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट ऑफ FATF, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ the gray, putting Pakistan in the grey list on India. इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते में क्या असर आएगा अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो? ऐसे सोच के पढ़ना है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, क्वेश्चंस पूछो खुद से। whenever you are studying current affairs, ask questions from yourself. if Pakistan is in the grey list, what does it mean, right? मतलब क्या है इसका? and if it is in the grey list, how will it impact the relation with India? इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? एंड what will be the impact on Pakistan's economy? मान लो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, राइट? ऐसे क्वेश्चन खुद से पूछो, आंसर सर्च करो और लिखो, सर्च इट ऑन गूगल एंड देन राइट। ऐसे ही तो दिमाग खुलेगा, वरना तो रटा रटा ज्ञान हर जगह है। ठीक है, क्लियर? इतनी बात सबको समझ आ गई? So this is how you have to study. You can make mnemonics or short forms wherever possible. जहाँ mnemonics बना सकते हो, short form बना सकते हो, बनाओ policies याद करने के लिए, and use illustrations while making notes. Diagrams बना सकते हो, flow charts बना सकते हो. It will enhance your revision also, and those diagrams you can make it in your answer sheet also. Diagrams बना सकते हो आंसर शीट में, flow charts बना सकते हो, right? इस तरीके से फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं। दिस इज हाउ फ्लो चार्ट्स आर मेड। इस तरीके से पढ़ोगे तो नोट्स भी शॉर्ट हो जाएंगे और आंसर राइटिंग में भी आप यूज कर सकते हो। योर नोट्स विल बी शॉर्ट ऑटोमेटिकली एंड यू कैन यूज देम इन आंसर राइटिंग ऑल्सो। एंड फोकस ऑन करंट अफेयर्स, जितना हो सके करंट अफेयर्स पे फोकस करो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी GS पेपर 3 फॉर मेंस. With the syllabus, I have decoded the micro topics and I have gave you the I've given you the list also of the books and the resources that you require to make notes. जिस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं मैंने वो भी बता दिया, किस तरीके के रिसोर्सेज नोट्स चाहिए होंगे वो भी बता दिया, बुक्स भी बता दी और माइक्रो टॉपिक्स भी बता दिया है। ठीक है, क्लियर? एंड न्यूज़पेपर जो आपको पढ़ना है वो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उससे ज्यादा नहीं। अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके पास है, इफ यू हैव इको एज ऑप्शनल, देन यू कैन स्टडी द इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इफ यू डू नॉट हैव इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल, देन ईदर द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस, एनी वन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको? So this was all for today. I hope you enjoyed today's session. Thank you everyone for participating. Tomorrow we are going to have 2 sessions. One at 3 PM and another at 9 PM. GS paper 4 and GS paper 1 strategy on Unacademy Plus. Free live special classes. Link is given below in the description box. Right? You can enroll yourself in these 2 sessions. Thank you everyone.